Good morning, everyone. This is Hitesh Raket from Spider Software, and I welcome to this webinar where I'll discuss the power of price OHLC. So, in this webinar, I'm going to discuss the latest conditions of price OHLC, which actually help you to identify the stocks for the intraday. So, overall, these are some common conditions which previously not there in the 5.2. So, we added that, and hopefully that will help you for filtering the stocks. So I'll focusing majorly for the price action thing in this webinar. So I'm starting without wasting time. Yeah. So basically this price OHLC for intraday query only, it will help you to identify the intraday stocks, and this help you only in the live scanners. So this price OHLC query, you need to go to the technical query in the Spider. Okay. So I hope this voice is now is audible. Yeah, Kiritsa, I think now it's audible. Okay, so I'm starting. So for identifying the scanners on the price OHLC, you have to go to the query. And here, there is an option of a technical query. So at a time, we can open the 3 technical queries. And out of that, to identify specifically on the intraday, you can go here and select the price OHLC. Okay, so there are 2 options. First is price OHLC and the second one is price OHLC for intraday query. So specifically, what is the difference is the condition which is specifically for the intraday only. Like some of the condition are there which will not working on the daily, but specifically running on the intraday. So that is why we have a different this condition option where we are focusing only on the intraday query. Okay, so I'm just selecting the second one, price OHLC for intraday query only. Okay, once you select that, there is an option of a parameters. So you can choose the intraday conditions. Like here, I'm going to intraday, and there is an option of intraday. I can use 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, any intraday time frame. And here you can go to the conditions. So previously, there was a session on part 1, which is the same price OHLC intraday query only, but part 1 is conducted by Mr. Trishul. Today I'm conducting the second part. So till the volume quantity cross about 2 days max volume bar, it is already conducted by Mr. Trishul. So I'm continuing from the part 2, which is from gap up still open. Okay, so as we know, gap up is a very important factor to identify the stocks, and it actually help you to identify a proper momentum stocks. So what this condition means, like here you can see the gap up still open, which means gap is created by the market, but still it's not partially filled or not actually fulfilled. So here what we can do with this condition, you can identify a stock which is not even partially filled. So just click on that and you can add on the technical query. Okay, so once you added this will filter out a stock which is specifically on the gap up. Okay, so here you can see the first condition is where your previous candle and you are comparing with your current candle. So your current candle's low is higher than the previous candle's high, which means clearly show you a gap. So this kind of gap will help you in the market at the start of the time, like near 9:15 to 9:30. Okay, if you are using 15 minutes candle, or 9:50 to 9:20, which is the first candle where you can see a gaps. Okay, so such kind of gaps will help you to identify the momentum stocks. So in this case, you can see there is a clearly a yellow line, which is a gap zone, which is a gap up zone. Okay, so your low is higher than the previous high. So to filter out such kind of stocks in the live market, this will specifically help you for intraday trades. So I have added this condition and I'm clicking on the 5 minutes gap up. So if I run, like currently you can see, I am running the market, the action replay. Okay, so here, so this is the candle, okay, which is a 9:20. So this is the previous candle, which is the 3:30 candle of the
10th of August, and this is the first candle of the day. So if I wanted to finding out at the start of the day, I need to run this condition. So if I click on this, like we can use the Control D option, and accordingly we can filter out. Okay, so इस कंडीशन का एक ही मतलब है कि जो भी स्टॉक्स गैप अप हो वो हमें ये फिल्टर करके देगा, लेकिन वो फिल्ड नहीं होगा, ना ही वो पार्शियली फिल्ड होगा। लाइक कि जैसे अगर आप कहीं पे देख रहे हो गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, तो जहां से वो हाई या लो क्रिएट हुआ है उसको वापस अटेम्प्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि स्पेसिफिकली जो स्टॉक्स जिनका गैप अप हुआ है लेकिन वो टच भी नहीं हुआ वापस उस लेवल को, जैसे मैं ये कैंडल पे मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ तो आपको बेटर समझेगा। सो मैं यहाँ पे मैं रन करता हूँ और मैं फिल्टर करता हूँ। ओके, तो मुझे क्या दिखा है स्टॉक्स, इनको मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे अगर देखना है अशोक, अतुल, बी सॉफ्ट वगैरह है कि वो ओपन है या नहीं है, तो क्लियर। सो बिकॉज ये मैंने उस वक्त वो अनफिल्ड थी। ओके, तो उस वक्त वो अगर अनफिल्ड थी तो हमें वो शो कर रही है। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करने जाऊंगा तो मुझे वो येलो कलर में दिखाई देगी। जैसे आप देख रहे हो ये वाला केस, इसको अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, सो वो टाइम पे इट वाज अनफिल्ड। ओके, सो स्टिल ओपन। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो, इस कैंडल का हाई, प्रीवियस कैंडल का हाई और करंट कैंडल का लो जो है वो ऊपर है उसके हाई से, सो ये अनफिल्ड गैप है। So to filter out such kind of stocks in a market, you can use this scanner, and specifically this scanner will help you once the very next candle is closing above that area. जैसे कि आप चेक करो कि this candle is created which is a gap up candle, लेकिन अगर उसकी अगली ही कैंडल या उसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोजिंग दे रहा है तो उसके हाई के ऊपर हम सोचते थे कि शायद वो मार्केट बुलिश हो सकता है। ओके, सो ये सारी चीजें एट स्टार्ट ऑफ द डे ज्यादातर हेल्प होता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल हेल्प यू कि यही मोमेंटम हो सकता है। So to filter out such kind of stocks, you can use this for that gap. Like this is a gap up, and this candle close up. So at this candle high, this is a bullish condition specifically for gap up. Okay, so in this example, you can see first candle is created and the very next candle close above that. So on the second candle high, you can go long, and the same second candle you can take the SL. So accordingly, it will help you to filter out the bullish momentum stocks. The very next condition is gap down. जैसे गैप अप होता है वैसे गैप डाउन हम कंडीशन ढूंढना हुआ तो हम उसको ढूंढ सकते हैं, बट स्पेसिफिकली सजेस्ट यही होता है कि यू कैन use this scanner at the start of the day. Even you can use on 1 minute, you can use on 2 minutes, you can use on 5 minutes, on any intraday time frame. Okay, so I'm again going to this scanner and I'm choosing this scanner for gap down. Okay, so again I go to this first candle and I change the query offset. Okay, so it's showing you the query offset, like in the window Control D, you can see it's the 36. In this Control D window, bar number 750 in bracket showing 36. So you have to always -1 and take 35 and run. Okay, so these are the stocks which are gap down. So you can see if I click on this Alkem, you can see this is a gap. So there is a gap down. So to filter out such kind of stocks, you can use this condition specifically. Aggressive in the market, the intraday, and like those who are little, like they can use this scanner. तो क्या हो सकता है गैप के बाद अगर आपको एक कैंडल मिलता है जो क्लोज हो सकता है, लाइक अगर मैं इसको 1 मिनट पे ले लेता हूँ एंड अगर आप चेक करोगे कि पहली मिनट में ये गैप डाउन हुआ एंड अगली कैंडल ने उसको सेटिस्फाई किया, सो इस केस में क्या होगा कि समवन हु इज लिटिल एग्रेसिव, he can short below this and he can take this candle higher than SL. So aggressive person के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हो, and even if you are looking for a conservative, like you wanted a confirmation, so you can go on a 5 minutes or a 15 minutes time frame, but it's better to go at the start of the day.
So in this case, you can see your current candle high is lower than the previous candle's low. So this will help you at the start. Yeah, Bora saw that you are not getting voice. Please check or rest. I think rest attendees can. Hello. Yeah. So rest attendees can show your comment in the chat box that you are getting a voice or not. Till the time, I can tell you that we are coming up with a webinar, which is a paid webinar, specifically conducted by Mr. Pankaj Andar. So he is an expert in the intraday trading, and also he is the one who take live shows on the CNBCs and the other national channels. So you can join this webinar. This is a full day live webinar where he will be connected from 9:15 till 3:30, and he will also generate the calls. And specifically, there will be very high chances that you will be profitable in that day. I hope voice is clear. आपको voice आ रही है सबको? या आई थिंक अभी वॉइस आ रहा है आपको सभी को? सो मैं एक बार अगर ऐसे चाहिए तो मैं बेसिकली I'll again explain you what is gap up and gap down. करंट कैंडल का हाई कि जहां पे भी जो है लो है वो ऊपर है प्रीवियस कैंडल के हाई के, which means there is a chance of a gap up, and जहां पे गैप फिल नहीं हुआ है वो हम फिल्टर आउट करेंगे विद दिस स्कैनर, जहां पे करंट कैंडल लो इज हायर देन द प्रीवियस कैंडल हाई, ओके, व्हिच इज स्पेसिफिकली बुलिश। और सेम बेरिश के लिए है कि करंट कैंडल का जो हाई है व्हिच इज लोअर देन द प्रीवियस कैंडल लो। सो यहाँ पे गैप डाउन सिनेरियो आपको मिलेगा। दिस इज फॉर बेरिश। स्कैनर में जब जाना है, गैप अप स्टिल ओपन, गैप डाउन स्टिल ओपन, ये दोनों कंडीशन आप यूज कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये आया दैट व्हाट डज दिस क्वेरी ऑफसेट मींस। ओके, सो मार्केट जैसे मुझे पता है कि अब ऑलरेडी अगर हम अभी चेक करें, मैंने एक्शन पे चालू किया हुआ है विच इज 12:15 हो चुका है। इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई कि शुरुआत में, दिन के शुरुआत में पहले 5 मिनट में कौन से स्टॉक ने वो सेटिस्फाई किया है कंडीशन, सो मैं पीछे जाके तो मैं एक्शन पे वापस स्टार्ट से करूंगा, इससे बेटर है मैं उसी कैंडल के ऊपर मैं चले जाता हूँ। एंड ये जो विंडो है विच इज कंट्रोल डी का विंडो, ओके, ये आपको हेल्प करता है कि वो पर्टिकुलर कैंडल कौन सा है जहां पे मैं ये स्कैनर रन करूंगा। सो नाउ यू कैन सी इन दैट विंडो द बार नंबर इज शोइंग इन अ ब्रैकेट विच इज 37, ओके, सो यू नीड टू ऑलवेज -1 एंड पुट इन द क्वेरी ऑफसेट कि ये जो कैंडल है, ये पर्टिकुलर कैंडल पे कौन से स्टॉक्स ने कंडीशन सेटिस्फाई की है। इफ आई पुट 36, यहाँ पे अगर आप देखोगे 37 है ये एक पर्टिकुलर कैंडल पे, एंड आउट ऑफ दैट इफ आई -1 इट इज 36, ओके। सो मैं 36 जैसे माइनस करूंगा बिकॉज आपका जो करंट कैंडल होता है इट स्टार्ट विथ 1 इंस्टेड ऑफ 0, ओके, सो दैट इज द रीजन वी आर ऑलवेज -1, एंड उसके अकॉर्डिंगली ये आपको स्टॉक्स देगा। जैसे मैंने अभी इसको 36 करके अगर रन किया तो मुझे क्या दिखा रहा है, ये पर्टिकुलर कैंडल पे कौन से स्टॉक ने वो कंडीशन सेटिस्फाई की है। सो इसी तरीके से अगर मैं ये कैंडल पे क्लिक करता हूं, ये कैंडल पे, तो अगर आप देखोगे कैंडल बार नंबर है 14, फिल्टर आउट करना है तो अगर मुझे स्पेसिफिकली 11:15 का कोई स्टॉक तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 14 आ रहा है, ये मेरे को स्टॉक्स निकाल के देगा अगर किसी ने सेटिस्फाई की होती तो।
यहाँ पे एक भी स्टॉक्स नहीं, मतलब कोई भी कैंडल ने या कोई भी स्टॉक के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं है। अगर मैं बार वन करता हूँ तो पिछले बार में कहीं पे हुआ नहीं हुआ है, बिकॉज ज्यादातर ये चीजें होती है वो डे स्टार्ट में होती है। सो गैप अप एंड गैप डाउन, दिस कंडीशन एक्चुअली हेल्प यू एट द स्टार्ट ऑफ द डे, where you can see there is a chances of a gap up and gap down in those stocks, and accordingly those stocks are following that trend the whole particular day. Okay, so I hope this is clear, this gap up and gap down. अगर आप वो कमेंट कर दोगे गैप अप एंड गैप डाउन आपका क्लियर है, देन आई विल स्टार्ट द फर्दर कंडीशन. ओके, सो हाँ, आप तब तक अपना कमेंट दीजिए एंड तब तक मैं एक पोल जनरेट कर देता हूं जो कि रिलेटेड है गैप्स के. ओके, सो आपने इसी तरीके से जैसे मैंने अब आपको बताया कि गैप अप एंड गैप डाउन के थ्रू आपने कोई स्टॉक्स को ट्रेड किया है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, लेकिन क्लोजिंग के बेसिस पे. ओके, सो आई थिंक आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आप पोल पे आंसर दीजिए. टिल द टाइम आई विल वेट नेक्स्ट 10 सेकंड्स मोर एंड फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट कंडीशन पे. ओके, बिकॉज आई थिंक ये जो गैप्स की थियरीज होती है वो काफी लोग उसको यूज नहीं करते बिकॉज उनको पता ही नहीं है. तो कंफर्मेशन, गैप्स के बाद कंफर्मेशन कैसे लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो कंफर्मेशन जो है वो अगले ही कैंडल के थ्रू या उसी गैप के ऊपर जब क्लोजिंग आए तब आपको ज्यादातर वो हेल्प होती है. सो आई होप कि आपको कुछ नया मिले आज के दिन में इस क्वेरी कंडीशंस के थ्रू. ओके, सो फाइनली मैं ये जो पोल है मैं उसको क्लोज करने जा रहा हूँ. ओके, सो मुझे यहाँ पे फिलहाल जो रिजल्ट ये मिला है कि 24% ने ही वो चीज फॉलो किया हुआ है, अभी तक उन्होंने ट्रेडिंग में यूज किया हुआ है, एंड रेस्ट 76% ने अभी तक यूज ही नहीं किया हुआ है. ओके, so the reason is maybe ki due to unaware. So I hope this condition will help you to filter out these stocks, because अगर आप चेक करोगे, because I following on 1 minute time frame many times. Okay, so अब जब शुरुआत में you want to finding out a momentum stock, so आपको 9-17 को ही पता चल रहा है कि इसमें गैप डाउन हुआ है, और जो एग्रेसिवनेस अगर आप देखोगे इसमें जो मंदी हो रही है, that will actually help you. So to filter out such kind of stock, you can use this query on a 1 minute time frame as well. And in live market, you just click on live query and then accordingly you can filter out stocks. Okay, so below this you can see after gap down you got this confirmation, and accordingly you can go with a small risk and you will definitely get good reward. At least you will get 1:2 risk reward ratio in the gap theories, but always need to follow at the start of the day. Okay, so I'm starting with the condition 3, which is actually the favorite condition of mine, because I have specifically focusing on this condition, which is on the basis of price OHLC and for the previous day. So अगर आपको प्राइस के अंदर आपको प्रीवियस डे हाई लो अगर मार्किंग चाहिए, so उसके लिए you have to right click, go to the chart settings, and in that you will get these options. So in that you have to click on the levels, and there is an option of a previous day levels. So once you click on this, you will get this multiple of levels. So what you can do, you just untick this previous day close and the rest of the one except the previous day high and low. ओके, जब आप प्रीवियस डे हाई या लो को अगर आप क्लिक कर दोगे, सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रीन एंड रेड कलर का मार्किंग आ रहा है. सो अगर मुझे प्रीवियस डे के ऊपर भी चाहिए तो मैं इसको ऑल प्रीवियस डे हाई लो लाइंस पे क्लिक कर दूंगा. सो वंस यू सेट दिस, आप देख रहे हो हर दिन पे आपको ग्रीन या रेड लाइंस आ गई, विच इज द प्रीवियस डे हाई ग्रीन लाइन एंड प्रीवियस डे लो विच इज द रेड लाइन. ओके, अब ये जो प्रीवियस डे हाई लो लाइंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए. सो जो नेक्स्ट कंडीशन है वो इसी के बेस पे है जो हमने 6.0 में जो लेटेस्ट कंडीशन डाली है, विच इज टुडेस फर्स्ट बार ओपन इक्वल्स टू लो. ओके, सो आप अगर चेक करोगे
कि जैसे मुझे पता चल रहा है कि जो नॉर्मल क्या होता है कि हमें ओपन रेंज ब्रेकआउट के लिए हम स्टॉक्स ढूंढते हैं, ओके, बट काफी बार होता है कि वी आर फोकसिंग ऑन द डेज फर्स्ट बार, जहां पर फिक्स्ड है कि वो तो होनी ही चाहिए कंडीशन में, ओके। सो उसके लिए हमने यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये जो अपोलो टायर है, इसमें जो डे का जो फर्स्ट कैंडल है वो ओपन हाई है, एंड ये कैंडल है, यहाँ पे आप चेक करो, ये बेरिश कैंडल है। सो ये बेरिश कंडीशन में आएगा, बट हम यहाँ पे फोकस करें बुलिश के लिए, तो आपको यहाँ पे कंडीशन में जाना है, एंड देन यू हैव टू चूज टुडेस फर्स्ट बार ओपन लो, ओके। आप इसको जैसे ऐड करोगे एंड यू कैन यूज एनी टाइम फ्रेम, ओके। अब इसके अंदर आपको ऑफसेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी इनबिल्ट ये डाला है कि डे का फर्स्ट बार ही है। तो अगर इफ आई यूज दिस ऑफसेट 1 एज वेल ना, ये हमें वो स्टॉक देगा जो ऑटोमेटिकली डे हाई का जो फर्स्ट बार है उसी के अंदर ओपन लो क्रिएट हुआ है। अब चेक करो दिस कैंडल, ओके। सो यहाँ पे ये कंडीशन के अंदर हमने स्पेसिफाई कर लिया, बिकॉज ये बहुत कॉमन कंडीशन है जो मार्केट में यूज होती है। So we have added this, and accordingly you can use this scanner. So open high and open low जो condition होता है, ये specific criteria बहुत common है market में. You can use on any intraday time frame. So ये open low वाला condition है वो bullish condition है, and how you can use this. अब सवाल ये आता है कि अगर मैं ये चीज filter out भी करूं, तो how can I use this in my intraday query? So अब what you can do कि अगर आप चेक करोगे 11 तारीख का अगस्त, जो कि कल का है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखो, इंडी बैंक है, ओके, इंडियन बैंक जो है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ओके। ये अब इसको मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है, ओके। अब चेक करोगे, यू कैन सी दिस इज द डेज फर्स्ट 15 मिनट कैंडल विच इज ओपन इक्वल्स टू लो, ओके। एंड अगर आप चेक करोगे द वेरी नेक्स्ट कैंडल is closed above that open low candle. So what you can do, you can go long above this candle high. तो ये सब केसेस में क्या होता है कि व्हेन यू फिल्टर आउट सच ओपन रेंज ब्रेकआउट स्टॉक, अगर उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गया तो कंफर्मेशन मिल गया, एंड उसके बाद आप उसके अंदर ट्रेड में जा सकते हो। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, जो भी मुझे यहाँ पे स्टॉक्स मिले हैं करंटली, जो भी स्कैनर के थ्रू मिले, जो भी, सो वो सब केसेस में भी आपको क्लोजिंग तो चाहिए चाहिए उसके ऊपर। तो अगर आप देखोगे जैसे कोल इंडिया है, इज अ कोल इंडिया के ऊपर क्लोजिंग आया नहीं है, बिकॉज यस्टरडे बेरिश वी कैन से कि मंदी, सो उसमें चांसेस, ओके। सो अकॉर्डिंगली stocks of the open low is closed above that candle's high. See the none of this high. यहाँ पर क्या होगा, this is in the negative direction. So this is a bullish condition. So you can use this, but the thing is, once you filter out this stock, the next candle should be close above this candle's high. So that time you will get the bullish momentum stocks. ओके। सो खाली इसका काम इतना ही है कि जिस स्टॉक ने ओपन लो क्रिएट किया हुआ है, डे की फर्स्ट कैंडल, मे बी आप जो भी टाइम फ्रेम यूज करो इररिस्पेक्टिवली, वो उसी के हिसाब से दिखाएगा, ओके। द नेक्स्ट वन इज द ओपन हाई। सो ओपन हाई के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेम कंडीशन में जाना है, यू हैव टू चूज ओपन हाई 1, एंड इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, एंड यू कैन रन। तो जो स्टॉक्स ने कल के दिन में मंदी के, बिकॉज मार्केट मंदी था, यू गॉट 39 स्टॉक्स, ओके। सो उसके बाद आप नेक्स्ट कंडीशन नहीं डाल सकते हो, उसको फॉलो कर रहा है। सो अगेन जैसे मैंने बोला, अपोलो टायर है कि यहाँ पे था, एस्ट्रल में अगर आप चेक करोगे उसके नीचे क्लोजिंग मिला नहीं, ओके। सो बट यू कैन सी द जो फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल है which is created open eye. So same way you can click on any of the conditions and you can filter out for that day, okay. अब जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस डे हाई लो क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर आपको पता चल रहा है कि ये कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं और आपको दिख रहा है कि प्रीवियस डे लो के नीचे ही हो गया वो क्रिएट, तो ऑलरेडी वो मंदी हो गया। अगर ये चीज जो है प्रीवियस डे लो के ऊपर है, तब तक तो मंदी नहीं है, बिकॉज अगर इस किसी स्टॉक के अंदर एकदम डायरेक्ट मंदी वाला क्राइटेरिया आया हुआ है, तो प्रीवियस डे लो के नीचे वो ऑलरेडी दिखा रहेगा। जैसे आप देख रहे हो ये कंडीशन विच इज एक्चुअली क्रॉसिंग द प्रीवियस डे लो। सो जब तक इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगा, तब तक वो फॉल शुरू नहीं करेगा मार्केट,
So this criteria that you can use in the market. It will work for that day only, जब तक आपका EOD डेटा नहीं आया हुआ है. So अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, these are the conditions, these are stock which fulfill these conditions. तो अगर आप देखोगे अशोक है, कैनफिन है, DLF है, so ये सारे स्टॉक ने डे का जो फर्स्ट कैंडल है उसने प्रीवियस डे हाई को टच तो किया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे ही है. सो टू फिल्टर आउट दिस अटेम्प्टेड स्टॉक, जहां पर उसने अटेम्प्ट किया हुआ है ऊपर जाने की लेकिन वो फेल हो गया है. सो अगर आपको ऐसे कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट करना है तब आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो. सो इन सब के अंदर आप चेक करोगे, जो मैंने प्री डिफाइंड जो स्टॉक्स फिल्टर आउट किए, फर्स्ट है DLF. ओके, सो यहाँ पे हमारे चैनल में ऑलरेडी आ चुका है DLF. अगर आप चेक करोगे, ये कैंडल ने, देखो ये कैंडल ने टच किया, फेल हो गया. ओके, बट जैसे मैंने कहा कि अगर आपको इसी के नीचे आपको अगर स्टॉक्स क्लोजिंग मिलता है देन यू कैन गो शॉर्ट. लेकिन जैसे मैं हमेशा यूज करता हूँ, एक बोरिंग कैंडल की सेटिंग ज्यादातर यूज करूँ ताकि मुझे वो मोमेंटम स्टॉक्स थोड़ा और कंफर्मेशन दे. सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके चार्ट सेटिंग में जाइए और ये बोरिंग में आप ऐड कर सकते हो. ओके, अब आपको देखो, आपको थोड़ा और ज्यादा बेटर क्लियर मिलेगा कि ये जो अटेम्प्टेड स्टॉक्स है इसके नीचे ये कैंडल ने क्रॉस किया था विद स्ट्रॉन्ग कैंडल. तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे कहीं पे आप शॉर्ट कर सकते हो और यही कैंडल के हाई के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो. और यू कैन टेक दिस कैंडल्स हाई एज अ एसएल. उससे क्या होगा, यू विल गेट अ स्टॉक एंड वहां पे बहुत मिनिमम एसएल होगा. सो विल यूज, इफ यू यूज दिस कंडीशन यू विल गेट अ स्टॉक फॉर बेरिश ट्रेंड with a very high probability that stock will fall in that direction. Again, if you go to this Ashok, because you can see this candle is very long, then the next one is Canfino. You can see this candle attempted to fall, but you are not getting any confirmation candle below this level. Okay, so if you are getting that, then only it will a chance that the stock will fall. Then you are getting a Hero MotoCorp. Okay, you can see this is a very long candle which is attempted but failed to sustain, and as I told, you will get a confirmation candle and accordingly you can go short in this stock. So you will get a momentum. Same for Infi. Here you can see attempted, again you got failed, and here in this candle you got an entry. You can short it and you can see the fall. So even the market is a bearish or bullish. Okay, so this is condition specifically for the bearish market, because if you're looking for a short, then it will help you more. You can also use in a bullish, like once a strong candle is closing above this level, then surely you can go long. But specifically this will help you for bearish stocks. Okay, so आप देख रहे हो यहाँ पे अगेन ये जगह पे आया, आपको ये कैंडल पे ब्रेकडाउन मिला एंड वहां से बड़ा सा फॉल यहाँ पे देख रहा है. एंड द लास्ट वन इज TVS मोटर. ओके, सो इन दिस केस हाँ, यहाँ पे ये बोल सकते हो कि यहाँ पे एक फेल हुआ है, बिकॉज आपको दिख रहा है कि एक ही कैंडल में जहाँ पे उसका रिवर्सल मिला, मे बी फंडामेंटल न्यूज हो सकता है या XYZ रीजन. सो आउट ऑफ यू आर गेटिंग 6 to 7 stocks. Okay, and वहां पे 7 stocks you are getting only one stock which is actually taking your SL. Okay, but so in the same case you can use with some other indicator as well. So आप ये कंडीशन यूज करो, साथ में आपके कोई भी इंडिकेटर्स है वो आप यूज करो, डेफिनेटली आपको हेल्प होगा फॉर शॉर्टिंग द स्टॉक्स. ओके, सो ये टेस्टिंग के लिए, लाइक if stock is testing that previous day high level and closing below that, then आपको ये ज्यादातर स्टॉक्स फिल्टर देगा एंड वहां पर आपको क्लोजिंग मिल जाता है तो और बेस्ट हो जाता है. ओके, सो दिस इज फॉर bearish trend. The next one, I'm again going to this technical query, and यहाँ पे इसी के नीचे एक और कंडीशन है which is touch previous day high from above. If I take this condition, so this will actually help me
to filter out stock which are touching from above. जैसे कि उसका ओपन एंड क्लोज प्रीवियस डे हाई के ऊपर है, बट उसको टेस्ट करने के लिए प्रीवियस डे हाई पे आया हुआ है. So this kind of condition will help you to filter out bullish stocks. The reason is because if a hammer is created on the previous day high, so there is a very high chance that once that high is broken, the very next or maybe the 2-3 candles, then there will be a very high chance that stock will move in that direction. कि स्टॉक अटेम्प्ट करने आया है प्रीवियस डे हाई के नीचे जाने के लिए, बट फेल हो गया है. अगर उसी कैंडल के हाई के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलता है तो मार्केट शार्पली बुलिश कंडीशन में जा सकता है. So here if I tick on this is condition number and I am taking offset of 40. अब आप देखो ये RBL बैंक है, ये देख रहे हो ये कैंडल यहाँ पे. On this candle you can see the candles close and open is above the previous day high, but उसने टच किया हुआ है प्रीवियस डे हाई को, टच किया हुआ है प्रीवियस डे हाई को. सो वंस यू कैन सी कि इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग आता है, जैसे अभी यहाँ पर आया हुआ है, तो इसके हाई के ऊपर ही देयर विल बी चांसेस कि आपको लॉन्ग का कुछ क्राइटेरिया मिल सकता है. ओके, सो जो कैंडल ने अटेम्प्ट किया है उसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है एंड उसी का हाई ब्रेक हो तो ही वो स्टॉक ऊपर जाएगा. ओके, सो ओवरऑल सच काइंड ऑफ फॉर्मेशन will help you to filter out bullish stocks. ओके, जैसे अगर आप चेक करोगे, जैसे ये यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ. ओके, तो अगर स्टॉक इस टाइप का जब अटेम्प्ट करता है एंड देन वेरी नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, जैसे उसका हाई ब्रेक हुआ तो आपको वहां पे एंट्री मिलता है एंड यही कैंडल का लो यू कैन टेक एसएल. सो देयर इज अ वेरी लेस स्टॉप लॉस एंड अकॉर्डिंगली आपको एक जो मूवमेंट है 1:2 1:3 का आपको मूवमेंट यहाँ से देखने मिल सकता है. सो अटेम्प्टिंग दैट लेवल वो आपको यहाँ पे मिलता है. ओके, सो उसी के लिए मैंने यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टॉक्स ढूंढ करके फर्स्ट इज विप्रो. ओके, अब मैं जाता हूँ विप्रो चेक करते हैं. ओके, आप देख रहे हो ये जो कैंडल है ये कैंडल अटेम्प्ट किया हुआ कैंडल है. ओके, बट जैसे मैंने कहा उसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए था बट नहीं आया. सो अगर क्लोजिंग आता देन वी कैन एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मूव, लेकिन उसी लेवल को नेक्स्ट कैंडल ने सस्टेन नहीं किया, क्लोजिंग दे दिया. सो जो हमारा व्यू बुलिश था वो चेंज होकर बेरिश हो गया. ओके, so same way if the very next candle is closing above that level, then there is a very high chance that stock will move in the upper direction, but this candle you can see closed below that level. So clear indication है stock is not sustaining above the previous day high, so वहां से फॉल आ गया. ओके, सो इसी टाइप के क्राइटेरिया अगर आपको जब भी कभी टेस्ट कर रहा है इट विल शो यू. तो ये हो गया विप्रो. देन जैसे हाँ, अब ये आज दीपक नाइट्रेट में ले लेता हूँ. ओके, तो आप देख रहे हो ये कैंडल यहाँ पे ऑन दिस कैंडल यू कैन सी दिस ट्राई टू सस्टेन ओके द प्रीवियस डे हाई. सो इसने यहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ है, लेकिन अगला कैंडल देखो जैसे नीचे आया शार्प कैंडल से क्लोजिंग वैसे भी नहीं मिला एंड देन वापस इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया. सो अबाउट दिस लेवल्स हाई 2081 पे आपको लॉन्ग एंट्री मिलने का चांसेस बन रहा था विद दिस कैंडल एज अ लो एसएल. सो आपको यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन क्या मिल रहा था कि यहाँ पे जैसे अगर ट्रेड लेते भी थे सो यू कैन गो लॉन्ग अबाउट 2081 एंड 2073 आपका स्टॉप लॉस है एंड वहीं से आप चेक करो यहाँ पे जो मूवमेंट आया ऑलमोस्ट 99 तक उसने हाई मारा है. ओके, सो यू गॉट 18 पॉइंट्स रियली with a risk of just 8 rupees. Okay, so attempting is very important and once it's sustained and you will get a breakout, so there will be very high chance that stock will move in the upper direction. Okay, विप्रो वाले केस में क्या हुआ, उसने सस्टेन किया बट उसने नीचे क्लोजिंग दे दिया. ओके, बट ये केस में अगर आप चेक करोगे सस्टेन किया अपर साइड, वहां से आपको बुलिश मूवमेंट मिल गया. एंड द लास्ट वन इज ओबेरॉय. ओके, सो इन दिस इस अगर आप चेक करोगे यहाँ पे देखो ये केस देखो इसने अटेम्प्ट किया है. ओके, बोथ ओपन एंड क्लोज इज अबाउट द प्रीवियस डे हाई, लेकिन इसके ऊपर आपको देख रहे हो कि यहाँ पे क्लोजिंग ही नहीं आया हुआ. सो इससे एक चीज तो क्लियर है कि अगर क्लोजिंग नहीं आया हुआ विच मीन्स कि इसमें अभी तक स्ट्रेंथ नहीं है. वंस इट क्रॉस दिस लेवल देन यू विल गेट अ बुलिश मूव. सो उसने नीचे ब्रेक किया एंड देन यू कैन सी अ फॉल. So this is a very important factor
टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे स्टॉक सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So to identify such touching stocks, you can use this condition, which is previous day high from above. मतलब closing उसके ऊपर पहले था and अभी उस candle ने previous day high को touch किया. Okay, the next condition is touch previous day high low. Sorry, the touch previous day low from below. अब ये क्या हो रहा है कि जैसे हमने अभी दो कंडीशन देखी 5 और 6, जहां पर हमने जो टचिंग कंडीशन दी वो प्रीवियस डे हाई पे दी. अब यही उसका वाइस वर्सा ये लो पे है. ओके, सो लो के नीचे पहले कैंडल के ओपन एंड क्लोज दोनों है एंड टच कर रहा है प्रीवियस डे लो को. सो अब यहाँ पे जब चेक कर रहे हो कि हम जाते हैं यहाँ पे कंडीशन में जाएंगे एंड हियर यू कैन चूज द नेक्स्ट वन, टच प्रीवियस डे लो फ्रॉम बिलो. अगर मैं क्लिक करके इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे MGL आ रहा है. ओके, ये कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑफसेट 40 रखा है. अगर ये मुझे फर्स्ट कैंडल पे चाहिए, मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे जो ऑफसेट है मैं इसको चेंज करके 41 कर देता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे कैंडल चेंज होंगे वो स्टॉक्स भी चेंज हो जाएंगे. जैसे आप देख रहे हो ACC, इस कैंडल ने उसको टच किया. देन यू गॉट अल्केम, जैसे उसने टच किया, मैकडॉवेल. ओके, सो दीज आर द स्टॉक्स. अब मेजरली व्हाट वी कैन डू if you're getting a weak stocks, weak candle stocks at the start of the day, just need to focus to candle close below that area, and you can see once it cross, so you can take an entry below this. So you can take this entry below this, and you can take this high as an SL, which is 101.75 will be your SL, and 997 will be your entry, and accordingly you can go short for the day. अब यहाँ पे आप risk reward ratio 1:1, 1:2, 1:3 depends on you, that how you are comfortable with the market. Because if a person is impatient, then definitely you need to go with a 1:1. Otherwise, you can go for 1:2 as well. Okay, तो आपको जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है कि स्टॉक ने नीचे से अपर साइड अटेम्प्ट किया हुआ, तो ये आपको बेरिश कंडीशन दिखाता है. तो यहाँ पे जो स्टॉक्स है, जैसे कल के दिन में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर निफ्टी आई है. ओके, निफ्टी के अंदर मैं देख लेता हूँ. आप देख रहे हो यहाँ पे 5 मिनट से, सॉरी ये निफ्टी भी आ गया. ये देख रहे हो ये वाला कैंडल आप देख रहे हो, ये या फिर ये दोनों आप कंडीशन दोनों आपका अटेम्प्टिंग है. और जैसे ही वहां से जब वो फॉल आया, अब चेक करोगे अटेम्प्ट किया, लेकिन स्पेसिफिकली आई सजेस्ट कि ये वाला कैंडल सबसे बेस्ट था बिकॉज अटेम्प्ट के बाद इसने क्लोजिंग दे दिया नीचे. तो मेरे लिए क्या होता, अगर मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ तो थोड़ा, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो माय एंट्री विल बी नियर 19470 के आसपास मेरा एंट्री रहेगा, एंड स्टॉप लॉस विल बी लाइक 19489 का. अब आपको दिख रहा है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ 20 पॉइंट्स. 20 पॉइंट्स तो आपको नीचे देगा ही मार्केट. ओके, बट आई विल वेट फॉर 40 पॉइंट्स. अगर आप थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से दैट विल बी गुड कि अगर आप यही कैंडल का हाई एसएल लगा दो. उसका रीजन ये है कि जहां पे आप 89 पे आप जब स्टॉप लॉस लगा रहे हो, जहां पे 20 पॉइंट्स का रिस्क है, वहां पे 30 पॉइंट्स का रिस्क लगा रहे हो, बिकॉज दिस प्रीवियस डे लो विल बी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट नाउ. तो हमारे साथ अगर एक और लेवल ऐड होगा तो हमारी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. सो अगर मैं ट्रेड करता था, सो मेरा 470 पे एंट्री होता एंड आई विल टेक 19498 विल बी माय एसएल. और यहाँ से यू कैन सी कि इजीली 1:1 यू विल गॉट. बट जैसे मार्केट जब बाद में फॉल और ज्यादा हुआ तो आपको 1:2 भी आपको दे चुका है. सो इन शॉर्ट अटेम्प्ट के बाद जब क्लोजिंग मिल गया आपके लिए और ज्यादा अच्छा हो गया. ओके, सो ये आपको यहाँ पे मिलता है. सो फर्स्ट इज मैकडॉवेल, जो कि आई थिंक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है यहाँ पे. ओके, ये इसके नीचे क्लोजिंग मिल गया, यहाँ पे शॉर्ट एंट्री एंड अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो. अभी ये केस में मैं इसको ऐसा लगाऊंगा लेकिन काफी लंबा हो जाएगा मेरे लिए. ओके, फ्रॉम 97 टू 1010 विल बी माय ह्यूज स्टॉप लॉस. तो उसी रीजन के लिए मैंने वही कैंडल पे ऐसा लगा. ओके, बट निफ्टी में जैसे मैंने बोला कि 30 पॉइंट्स इज इनफ, बिकॉज 30 पॉइंट्स के सामने आपको 60 पॉइंट फॉल दिखा सकता है. सो आई हैव टेकन दैट. अब यहाँ पे एक और स्टॉक है UPL. ओके, आप चेक करो ये कैंडल, दिस कैंडल इज अटेम्प्टिंग. अब इसी कैंडल के नीचे अगर मैं देखता हूँ कि किसी कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये कैंडल थी, ये वाली. ओके,
सो आई कैन गो शॉर्ट बिलो दिस लेवल। तो जैसे ही मैंने ये कैंडल का जो लो देखा, ओके, विच इज 604.75 विल बी माय लो, तो यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है, 606.75 मेरा एसएल बनता है, और यहाँ पे रिस्क है ओनली 2 पॉइंट्स का। लेकिन जिसके सामने आपको चांस मिल सकता है दैट यू कैन गेट एटलीस्ट 1% ऑफ द स्टॉक, 1% ऑफ द स्टॉक। सो ये चीज आपको हेल्प करता है। So this is how you can filter out the stocks which are attempting to cross above previous day low but failed. Okay, and the last example is Sun Pharma अपन ले लेते हैं। Okay, अब चेक करो, देखो ये बहुत बढ़िया बना है, just because you can see कि फर्स्ट कैंडल बन गई स्ट्रॉन्ग, जिसने ऑलरेडी बेयरिश साइन दिखा दिया है। देन यू कैन सी कि उसने अटेम्प्ट किया, फेल हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग मिला। ओके, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो ये लेगा के नीचे, विच इज 1136। बट आप देखोगे जब उसने वापस अटेम्प्ट किया, उसने टच नहीं किया बट फेल हो गया। बट यहाँ पे आपको चाहिए तो आप थोड़ा एग्रेसिव एंट्री आप 1140 पे भी कर सकते थे। ओके, तो ये दोनों चीजें, बट अगर आप 1140 पे कर रहे हो तो देन यू कैन टेक दिस कैंडल हाई एसएल 1149 1144.90 वाला एसएल आप लगा सकते हो अगर आपने एग्रेसिवली एंट्री लिया 1140 पे। लेकिन अगर आपने एंट्री लिया 1136 के आसपास, देन यू हैव टू टेक दिस कैंडल हाई एज एन एसएल, क्योंकि ज्यादा बड़ा एसएल हो जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि आपको ये व्यू बेरिश मिल जाता है। ओके, सो दीज आर द सम स्टॉक्स। जैसे अभी मैं सेल को नहीं ले रहा बिकॉज काफी छोटा स्टॉक है, सो मेजरली ट्राई करो कि 200 के ऊपर वाले स्टॉक हो, ज्यादा अच्छा है। अल्केम ऑप्शन था, ओके, जो अल्केम का भी अगर आप डबल क्लिक करके चेक करोगे, बट कैंडल काफी बड़ी थी, इसको इग्नोर कर सकते हो। एसीसी है बट उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिला हुआ है। सो इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि व्हेन अ स्टॉक इज ट्राई टू अटेम्प्ट प्रीवियस डे लो के ऊपर जाने का एंड बट फेल हो गया, विच मीन सप्लाई ज्यादा है, एंड उसके नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ फॉल। ओके, सो दिस इज कंडीशन नंबर 7। कंडीशन नंबर 8 इज टच प्रीवियस डे लो फ्रॉम अबव। अब ये क्या हो रहा है कि जो स्टॉक ऑलरेडी प्रीवियस डे लो के ऊपर ओपन हुआ है एंड देन वो ट्राई कर रहा है उसके नीचे क्लोजिंग देने का। तो जो 8th कंडीशन है वो इसका थोड़ा सा कंडीशन का खाली ओपन एंड क्लोज वो ऊपर है प्रीवियस डे लो से। ओके, सो आप चेक करो ये वाला कैंडल, ये कैंडल, ओके, वेर यू कैन सी द कैंडल इज टचिंग प्रीवियस डे लो, लेकिन ओपन एंड क्लोज उसके ऊपर ही है। सो विच मीन्स ये अटेम्प्ट कर रहा है टू गो बिलो दैट, बट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि ये जो कंडीशन है इसको स्पेसिफिकली मैं बुलिश कंसिडर करता हूँ, बिकॉज आपको पता है कि ऊपर से ओपन हुआ है, नीचे जा रहा है, बट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है विच इज नियर हियर, तो यहाँ से यू शेप करके रिकवरी करके ऊपर जा सकता है। बट अगर सब जो जैसे एग्जांपल अगर यहाँ पर है और वेरी नेक्स्ट कैंडल, बिकॉज वेरी नेक्स्ट इसलिए बोला बिकॉज जब शुरुआत में होता है मार्केट में, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर उसको क्लोजिंग दे दे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे नीचे जा रहा है, अटेम्प्ट किया हुआ है, बट अगला कैंडल वीक कैंडल है, यहाँ पे भी कुछ अपना फॉर्मेशन नहीं बन रहा है। सो मेजरली आप ये फॉलो करो कि ऐसा कोई कैंडल जो इसको टच कर रहा है एंड इसके नीचे अगला ही कैंडल फॉलो करे, तो ज्यादा आपको उसमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे ग्रैनुअल्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये तो हमने क्या एक कैंडल पहले लिया हुआ है, बट फोकस करो कि ये जो जो पहला कैंडल है 915 टू 920 वाला, वहां पे आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, अब चेक करोगे जैसे ये कैंडल्स है, अब इसके अंदर जो आपको देखना है कि वेरी नेक्स्ट कैंडल कौन सा जो उसको अटेम्प्ट कर रहा है क्लोजिंग के लिए। ओके, तो ये सारे कैंडल्स हैं, बट स्ट्रॉन्ग कैंडल किसी ने अटेम्प्ट किया हुआ है, आई थिंक ग्रैनुअल्स ने किया है, देख रहे हो ये। तो फर्स्ट कैंडल इज टचिंग द लेवल एंड द वेरी नेक्स्ट कैंडल इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। तो इसके नीचे आप मंदी कर सकते हो, विच इज 300 लेवल, विच इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो आपको क्लियर इंडिकेशन है कि अगर 300 के नीचे गया फिर तो उसमें मंदी आ सकती है, भले ही फिर वो साइडवेज गया, लेकिन उससे 300 जैसे ब्रेक किया उसके बाद उसने वहां से जो है उसने एक लो क्रिएट कर दिया विच इज नियर 297, विच इज ऑलमोस्ट 1%। ओके, सो दिस यू कैन सी कि ये किस हिसाब से बेरिश मूवमेंट में गया हुआ है। सेम चीज यू कैन सी आईसीआईसीआई, देखो यहाँ पे अटेम्प्ट किया बट फेल हो गया। ओके, बिकॉज उसकी नेक्स्ट कैंडल ने उसको क्लोजिंग दिया ही नहीं,
एंड देन यू कैन सी उसके ऊपर जैसे क्लोजिंग हुआ वहां से वो तेजी दिखाना चालू कर दिया। तो सेम वे आप यहाँ पे अटेम्प्ट चेक कर सकते हो कि जैसे अटेम्प्ट किया है, अगेन यू कैन सी अटेम्प्ट किया बट फेल्ड, दो बार किया फेल्ड, एंड देन क्लोजिंग अबाउट दिस लेवल। सो ये बुलिश, ज्यादातर बुलिश कंडीशन है। अगर आप बेरिश करना है तो उसके बैक टू बैक आपको कैंडल में चाहिए जो उसको क्लोजिंग करे। ओके, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे वो अटेम्प्ट किया हुआ है एंड देन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगले स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला, तो यहाँ से आपको मंदिर दिख सकता है। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पे जब ये कंडीशन यूज करोगे, दिस विल हेल्प यू व्हेन अ स्टॉक इज अटेम्प्टिंग टू क्रॉस प्रीवियस डे लो बट क्लोज्ड अबाउट द प्रीवियस डे लो। फेल्ड हुआ है बट वेरी नेक्स्ट कैंडल वी नीड टू वेट कि वो क्या कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन रिएक्ट ऑन द स्टॉक। ओके, सो दिस इज कंडीशन नंबर 8। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है विच इज हाईएस्ट हाई। ओके, उसका काम क्या है कि मार्केट में क्या होता है ना कि जब कभी हाईएस्ट हाई बन रहा है डे में, जैसे एग्जांपल अगर मैं स्टॉक लेता हूं, टीसीएस। ओके, अगर टीसीएस के अंदर हाईएस्ट हाई बन रहा है इंट्राडे में, लेकिन जब हाईएस्ट हाई बन रहा है ना वही टाइम पे उसने डे हाई भी मारा है, तो ये कंडीशन ये डिफाइन करता है। ओके, जैसे मैं एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कोल इंडिया है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर स्कैनर के थ्रू जाऊंगा तो मुझे वो आएगा, उसके अंदर कंडीशन सही, सेकंड लास्ट कंडीशन है हाईएस्ट हाई फॉर टुडे। इसको अगर मैं रन करता हूँ, ओके, सो जब शुरुआत होती है तभी तो हमें पता है कि वो डे हाई है। ओके, तो उसको आप कभी भी बाद में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो फर्स्ट दो कैंडल के तो वो हाईएस्ट हाई, वो डे हाई हो गया। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन में लेके आता हूँ कोल इंडिया। ओके, आप चेक करोगे ये कैंडल और ये कैंडल का अगर देखोगे 5 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, 5 पैसे का, अदरवाइज वो नहीं भी होगा। ओके, सो ये हाईएस्ट हाई वो क्रिएट कर देगा। तो जब वो हाईएस्ट हाई क्रिएट करता है, लाइक दिस, ये कंडीशन पे आप ले सकते हो कि जहां पे ये देख रहे हो यहाँ से इसका हाई ऊपर है एंड एट द सेम टाइम स्टॉक वाज एट डे हाई। तो इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई सच काइंड ऑफ स्टॉक देन यू कैन यूज दिस स्कैनर। ओके, वो वही टाइम पे हाईएस्ट हाई बनाएगा लेकिन डे हाई भी बनाएगा उसी कैंडल पे। जैसे ये केस में भी हो गया, आपको दिख रहा है हाईएस्ट हाई बनाया, ये डे हाई भी बना दिया। अब हाउ टू यूज दिस स्कैनर? ओके, बेसिकली दिस स्कैनर आई क्रिएटेड जस्ट फॉर टू फाइंडिंग आउट रिवर्सल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक ने हाईएस्ट हाई बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपने कैंडल फॉर्मेशन वहां पे डाल दिया, जैसे हम मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार वगैरह जब हम फिल्टर आउट करते हैं, उसी तरीके से अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि भाई जब वो डे हाई बना रहा है और अगर जैसे यहाँ पे आप देख लो रिवर्सल कैंडल बना रहा है, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस कैंडल लो के यहाँ पे अपन एंटर ले लेंगे एंड दिस कैंडल हाई एज एन एसएल। so specifically this help you to finding out reversal और टॉप पे या बॉटम पे। तो ये जो जैसे आपको कंडीशन कहीं पे भी मिलेगी, ओके, आपको जब वो मिलता है कि हाँ कि जब जैसे ये हाई बना दिया, रिवर्सल बना गया एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो शॉर्ट। तो टू फाइंडिंग आउट रिवर्सल दिस विल हेल्प यू। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज लोएस्ट लो फॉर टुडे। ओके, लोएस्ट लो क्या है कि जहां पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो स्टॉक है जब हम बॉटम से रिवर्सल फाइंड आउट करते हैं, जैसे अगर आप देखोगे अभी करंटली इन्फी में यहाँ पे लोएस्ट लो बनाया हुआ था। कैसे कि ये देखो ये कैंडल के नीचे ये कैंडल लो बनाया और वही वक्त अगर आप चेक करोगे दिस स्टॉक क्रिएटेड लो। ओके, सो दिस विल आल्सो फिल्टर हियर, दिस विल आल्सो फिल्टर हियर, यहाँ पे भी होगा। लेकिन आपको क्या हेल्प करते हैं कि भाई जैसे ही लोएस्ट लो क्रिएट हो गया उसके ऊपर क्लोजिंग आ रहा है। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे ये कैंडल पे क्लोजिंग है, तो यहाँ से आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। तो टू फाइंडिंग आउट रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम यू कैन यूज दिस कंडीशन ऑफ लोएस्ट लो फॉर टुडे। तो यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे जो भी आप इंट्राडे टाइम फ्रेम दोगे उसके अकॉर्डिंगली वो फिल्टर आउट देगा। ओके, सो एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो ये मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, आपको पीडीएफ जब शेयर होंगे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, सो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे जील है, अभी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, बिकॉज ये बेसिकली जो कंडीशन है ये आप शुरुआत में मत चेक कीजिए, बिकॉज शुरुआत में स्पेसिफिकली आपको ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि जब डे की जो अगर आप फर्स्ट टू कैंडल देखोगे तो वो तो डे हाई डे लो दिखाई देगा। ओके, सो इसको एक टाइम के बाद देखो, जैसे एग्जांपल जनरली मैं इसको फॉलो करता हूँ 11 बजे के बाद,
क्योंकि वहां से जब एक स्टॉक में ऑलरेडी फॉल आ चुका है जो पहले 2 घंटे में हो गया है, एंड देन वो जब रिवर्सल देना चालू करेगा, तो वहां से वो जब शार्प रिवर्सल एट द टॉप एंड बॉटम मिलेगा, दैट टाइम इट विल हेल्प यू। तो ये तब आप यूज कीजिए। जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, हर बार ये यहाँ पे लो क्रिएट कर रहा था। ओके, फर्स्ट 2 कैंडल में अगर देखोगे, जैसे मैंने कहा, इसने लोएस्ट लो बनाया, तो ये लोएस्ट लो के अंदर आ जाएगा। देन अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे उसने अगेन क्रिएट किया। ओके, बट ये एरिया में उसने क्लोजिंग दे दिया। तो ये एक एरिया आपके लिए इतना अच्छा है कि अगर मुझे रिस्क लेना, तो मुझे रिस्क तो आपको दिख रहा है कि वो काफी नैरो है, लेकिन अगर उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिंग के लिए जाऊं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे लिए रिस्क काफी नैरो है एंड रिवॉर्ड मुझे अच्छा मिल सकता है। लाइक अगर आप देखोगे, क्योंकि वही टाइम वो डे लो भी था, तो आपको रिस्क हार्डली ₹2 का है। ओके, विच इज नियर टू 1%, लेकिन अगर यहाँ से मूवमेंट आया तो पूरा वो दे सकता है टिल 290। जैसे कि काफी बार अगर आपने देखा होगा कि स्टॉक जैसे निफ्टी भी अगर आप देखो, फ्रॉम बॉटम से एकदम शार्प रिवर्सल दे देता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये सब क्राइटेरिया। सो दैट डे जब मैंने ये देखा था कि सो देयर विल बी वेरी हाई चांसेस कि निफ्टी रिवर्स दे सकता है। कब देगा वो? जब आपको पता है कि जैसे आपने देखो यहाँ पे लोएस्ट लो क्रिएट हुआ यहाँ पे, एंड उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गया, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चांस बन सकता है। ओके, अब कई लोग बोले हैं कि ये वाला भी तो फॉर्मेशन था। ओके, सो यहाँ पे भी बन सकता है, बट स्पेसिफिकली अगर आप चेक करोगे, नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका रिस्क काफी कम हो गया, और यहाँ से आपको रिवॉर्ड जो है वो आपको दिख रहा है कि निफ्टी ने शार्प मूवमेंट दे दिया। सो टू फिल्टर आउट सच स्टॉक्स या इसी फॉर्मेशन को अगर आपको ढूंढना है, तो आपको ये हेल्प करेगा। जैसे देखो, अभी आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि जैसे अभी ये जगह है, यहाँ पे लोएस्ट लो बना है, बट अगर आप चेक करो, इसका हाई जो है इसके ऊपर है। ओके, सो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल फेल है। तो जैसे वो डे हाई डे लो के आसपास कुछ क्रिएट करेगा, तो वो हमें दिखा देगा। सो लोएस्ट लो, लोएस्ट पार्ट को फाइंड आउट करेगा कि कहाँ पे आप बॉटम से रिवर्सल आ सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ओके, ये बताया नहीं कि वहीं से रिवर्सल होगा, बट प्रोबेबिलिटी कहाँ पे बन सकता है ना किस स्टॉक में, वो आपको ये शो कर देगा। सो दिस विल हेल्प यू टू फाइंडिंग आउट रिवर्सल। सो ये जो 10 कंडीशंस है जो आज हमने यहाँ पे देखे हैं, ओके, ये स्पेसिफिकली प्योर एंड प्योर फॉर इंट्राडे है। इसको आप इंट्राडे में किसी भी इंडिकेटर के साथ मर्ज कर सकते हो, क्योंकि हर एक कंडीशन का एक अलग मीनिंग है। तो वो आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे मार्केट में वो मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद दिस स्कैनर ऑफ प्राइस ओएचएलसी। क्योंकि हमें पता है कि जैसे हर कोई बोलता है कि भाव भगवान है, सो वैसे ही हमें पता है कि अगर प्राइस को अगर हम ज्यादातर यूज कर लें, और साथ में अगर आपके इंडिकेटर सपोर्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली वो हमें हेल्प ही होगा, एंड वहां से आपको कंफर्मेशन और ज्यादा बेटर मिलेगी। ओके, सो उसके लिए आप इन कंडीशंस को फॉलो कीजिए, इंट्राडे में थोड़े दिन टेस्ट कीजिए, बिकॉज आपके लिए और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स में आपको मिलेंगे। और जो मेरी कंडीशंस भी हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो मैं जनरली मैं फिल्टर आउट स्टॉक्स के लिए यूज करता हूँ रिवर्सल के लिए। तो उसके लिए आप हमारे सपोर्ट पे कॉल कीजिए। लेकिन उसके पहले अगर आप चेक कीजिए कि हम 17 अगस्त को एक पेड वेबिनार, जैसे मैंने कहा कि हम वेबिनार के लिए आ रहे हैं, जहाँ पे फुल डे लाइव ट्रेड्स होंगे। जो स्पीकर पंकज अंदाज सर है, वो आपको शेयर करेंगे किस तरीके से हमें मार्केट को रीड आउट करना चाहिए, किस तरीके से हम स्टॉक को ले सकते हैं, इंडेक्स को ले सकते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, अगर कोई इंट्राडे प्लेयर है वो कैसे ले सकता है, कैसे वो पोजिशनल ट्रेड फिल्टर आउट कर सकता है। सो ये सारी चीज वो डिस्कस करने वाले हैं। आपके अगर कोई क्वेरीज है वो वहां पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस स्टॉक को आप ऐसे देख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली वहां पे वो आपको लाइव ट्रेड देंगे जहां पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। और मेजरली उन्होंने जब फ्री वेबिनार में दिया था, सो वो प्रॉफिटेबल थे। आउट ऑफ उनका एक्यूरेसी मोर देन 70% तो था ही। सो वो आप चेक कर सकते हो। सो इसके लिए आप जरूर रजिस्टर कीजिए, एंड जब आप ये रजिस्टर करोगे तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको लिंक मिला है, नहीं मिला है तो। ओके, सो मैं यहाँ पर एक पोल जनरेट कर रहा हूँ कि आपने अभी तक इस वेबिनार पे रजिस्टर किया है या नहीं किया है, बिकॉज सीट्स जो है वो लिमिटेड है। सो अकॉर्डिंगली आप अपना जो पोल है वो आप शेयर कर सकते हो, और अगर आपको लगे तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको लिंक्स चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे चैट बॉक्स में भी हम डाल रहे हैं, जहाँ पे आप चैट बॉक्स के थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हो।
for this webinar. Okay, so मैं और 10 seconds वेट करूंगा एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे जाता हूँ. ओके, और आपकी जैसे कोई भी क्वेरीज हो डेफिनेटली आप हमारे सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं. ओके, सो ये सारे नंबर्स हैं, आप किसी पे भी कॉल कीजिए. इवन आपको वेबिनार के रिगार्डिंग डाउट्स है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको पेड वेबिनार के लिए कुछ डाउट्स है वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका XYZ कोई भी क्वेरीज भी आप कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए, हम लोग यहाँ पर हैं टू असिस्ट यू.